बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. This is class 3 and the period is mathematics. This is video number 7 and this is the last video of our semester. In this video, we take short review at what we have learned in this semester. I hope you remember that we have studied 4 units in this semester. The unit number 3, that is multiples and factor. Unit number 5, addition and subtraction. Unit number 8, 2D and 3D shapes, and the last one is unit number 9, that is problem solving and geometry. Now look at the board. We have discussed each unit shortly. The first unit is unit number 3, which is multiples and factor. Multiples and factors, and we have learned 5 lessons in this unit. That lesson number 1, which is multiples. What are multiples? Multiple is a number that we get by multiplying 2 number. ठीक है, मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल वो नंबर होते हैं जो आप 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद हासिल करते हैं. लाइक इफ वी मल्टीप्लाई 2 by 3, 2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6. सो 6 इज द मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3. यानी जो 6 है वो 2 का भी मल्टीपल है और 3 का भी. लाइक 4 मल्टीप्लाई बाय 3. अगर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट विल बी द नंबर? 4 3 12. सो 12 इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ नंबर 4 एंड 3. सो दिस इज कॉल्ड द मल्टीपल. द लेसन नंबर 2, lesson number 2 is lowest common multiple. Lowest common multiple. What is the means of lowest? Lowest means smallest. Okay, lowest का मतलब क्या होता है? Smallest, and common means same. यानी आपको अगर if you find out the lowest common multiple, look at here, 4 and 5. We have to find out the lowest common multiple of these two numbers. So first we write the multiples of 4. पहले आप 4 के मल्टीपल लिखेंगे. lowest common multiple find out करने के लिए write multiples of 4. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32, 4 9s are 36, and 4 10s are 40. These all are the 10 multiples of 4. Now write the multiples of number 5. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45, and then 5 10s are 50. These all are the 10 multiple of number 5. Now compare each multiple. Which multiples are common? You can see here 20. This is the common multiple of 4 and 5. At the next multiple, that is 40.
40 is also the common multiple of 4 and 5. So we write here common multiples. Common multiples are 40 and 50. Now look at which multiple is lowest. कौन सा multiple इन दोनों में आपके पास? Sorry, right, 20 and 40. 20 and 40 is the common multiple of 4 and 5. Now which multiple is lowest? The lowest common multiple is 20. So we write here LCM is equal to 20. LCM stands for, L stands for lowest, C stands for common, and M stands for multiple. Lowest common multiple is equal to 20. We have, this is your answer. We have discussed this type of question in lesson number 2, lowest common multiple. Okay. Now come to the lesson number 3, that is factors. Okay students, what are factors? Factors are the number that we get. Factor is a number that divide another number exactly. ठीक है, factor वो number होते हैं जो किसी दूसरे number को exact divide करते हैं. Look at here. What are factors? Factors are the number that we get that divide another number exactly. Like जैसे हमने अभी 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो 2 3 सा क्या हमारे पास आया 6. 2 3 सा 6. 6 is the multiple of 2 and 3. Both the numbers, ठीक है, 6 जो है वो 2 का भी मल्टीपल है और 3 का भी. इसी तरीके से 6 को 2 completely divide कर सकता है. So we can say that 2 is a factor of number 6. Factor of 6 यानी 2, अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं, like दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डिवीजन. अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं, क्या 2 के टेबल में 6 आता है? यस, 2 के टेबल में 6 आता है. 2 3 ज़ा 6. सो वी राइट हियर 2 3 ज़ा 6. नाउ -6 इज 0. देयर इज नो रिमाइंडर. ठीक है, सो हम 2 क्या है? फैक्टर है किसका? 6 का. इसी तरीके से 3 भी क्या है? फैक्टर है किसका? नंबर 6 का. फैक्टर ऑफ 6. 3 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ नंबर 6, क्योंकि अगर हम 3 से 6 को डिवाइड करें तो 3 के टेबल में 6 आता है. कहाँ आता है? 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. वी राइट हियर 2 3 2 ज़ा 6. 6 - 6 इज 0. सो वो नंबर जो किसी दूसरे नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं, वो उस नंबर के क्या कहलाते हैं? फैक्टर कहलाते हैं. द फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड अनदर नंबर एग्जैक्टली. ऑल राइट. नाउ लुक एट द लेसन नंबर 4. दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. Highest common factor. Now what are highest common factor? The greatest common divisor of 2 and more than 2 number is called the highest common factor. ठीक है, यानी 2 या 2 से ज्यादा नंबर का जो highest common factor होगा, जो उन दोनों का जो सबसे बड़ा फैक्टर जो कॉमन निकल रहा होगा, वो आपके पास क्या कहलाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा. Look at the example. The highest common factor of 10 and 40. First you find out the factor of 10 and then you find out the factor of 40. पहले आप 10 के फैक्टर फाइंड आउट कर लीजिए, देन यू फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ 40, और उसके बाद आप देखिए कि विच फैक्टर्स आर कॉमन. ऑलराइट, लुक एट हियर. HCF स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए आप एलसीएम करते हैं नंबर्स का रफ वर्क में. फर्स्ट वी टेक द नंबर 10. पहले हम 10 का एलसीएम ले लेते हैं. 10 को देखिए, 10 इज एन इवन नंबर. वो नंबर जो इवन होते हैं, द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2, वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके पास इवन नंबर्स कहलाते हैं. वी टेक द एलसीएम बाय नंबर 2. 2 के टेबल में 10 कहाँ आता है? 2 5 ज़ा 10. नाउ द लास्ट नेक्स्ट नंबर इज 5. अब 5 इज द प्राइम नंबर. 5 प्राइम नंबर है. वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, वो आपके पास क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं. तो हम 5 को 5 से ही डिवाइड करेंगे. 5 1 ज़ा 5. सो दिस इज द एलसीएम ऑफ नंबर 10. फैक्टर्स आर 1 2. अब 5 आपके पास दोनों जगह, आप जहां चाहें सर्किल कर सकते हैं. 1 2 5 एंड द लास्ट वन इज 10. नाउ राइट हियर फैक्टर्स ऑफ 10. That is 1, number 2, 5 and 10.
एंड रिमेंबर वन थिंग, 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल एंड एवरी नंबर, यानी 1 जो है वो हर नंबर का क्या होता है आपके पास फैक्टर होता है। आप किसी भी नंबर के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे 1 लाजमी होगा, ऑलराइट। और जो लास्ट फैक्टर होता है वो नंबर इटसेल्फ होता है, यानी जिसका आपने फैक्टर फाइंड आउट करें वही नंबर आपके पास लास्ट में आता है। नाउ फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 40। अब आप 40 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लीजिए बाय द हेल्प ऑफ एलसीएम। 40 इज ऑल्सो एन इवन नंबर, 40 भी इवन नंबर है तो हम इसका भी एलसीएम 2 से लेंगे। 2 के टेबल में 40, वैसे तो आप 10 तक मल्टीपल याद करते हैं लेकिन ये 40 इवन नंबर है तो ये 2 से आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। कैसे करेंगे? 2 2 ज़ा 4, 0 एज इट इज, इट मीन्स 2 20 ज़ा 40, 2 20 ज़ा 40। नाउ 20 इज ऑल्सो इवन नंबर, टेक द एलसीएम बाय नंबर 2, 2 10 ज़ा 20। Next one is 10, also take the LCM by 2, 2 5 are 10 and the last one number is 5, 5 1 5, 5 अपने ही टेबल में आता है इसलिए हम उसको 5 से ही करेंगे। The factors are 1, 2, 5, 10, 20 and 40। ठीक है, ये आपके पास जो सर्किल में फैक्टर्स हैं वो फैक्टर जो आपको एलसीएम पर नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इसके अंदर हाइड भी होते हैं, यानी छुपे हुए भी होते हैं। अगर आप 2 को 2 से जरा मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 2 ज़ा 4, तो 4 आप देखिए एलसीएम में कहीं मौजूद नहीं है, लेकिन 4 इज आल्सो द फैक्टर ऑफ नंबर 40। इफ वी मल्टीप्लाई 2 by 2 and 2, 2 multiplied by 2 multiplied by 2, तो 2 2 ज़ा 4 and 4 2 ज़ा 8, 8 is also the factor of number 40। 2 2 ज़ा 4 and 4 5 ज़ा 20, 20 यहाँ पर है इसलिए हम नहीं करेंगे। 2 2 ज़ा 4 and 4 5 ज़ा 20, वो भी 20 यहाँ मौजूद है। नाउ राइट द फैक्टर्स। द फर्स्ट वन इज 1, 2, आफ्टर 2 वी राइट 4। आपने ऑर्डर में भी लिखने हैं, ये नहीं कि जो पहला बड़ा है वो आप पहले लिख दें, नहीं। 1 2 4 and then the next one is 5, after 5 we write number 8, after 8 10, 10 के बाद आपके पास है 20 and the last one is 40। so these all are the factor of number 40। now compare each factor, which are the common। the number 1 तो लाजमी कॉमन आपके पास होगा हर नंबर का, 2 5 and the last one is 10। these all are the common factor। we write here common factors are 1 2 5 and 10। so these all are the common factor। now which is the highest common factor? highest common factor आपके पास कौन सा है? that is 10 because it is the highest। सबसे highest क्या है आपके पास? 10। we write here HCF। H stand for highest common factor is equal to 10। this is your answer। I hope you have got it। and the last one is lesson number 5, which is multiples and factor। this lesson is related to the all the 4 lesson। ठीक है, लेसन नंबर 5 आपका इन्हीं सब लेसन से रिलेट करता है, इसमें हमने मल्टीपल ऑफ फैक्टर दोनों ही फाइंड आउट कर रहे थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 5, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। वी हैव डिस्कस, वी हैव स्टडी, वी हैव लर्न 4 लेसन इन दिस यूनिट। लेसन नंबर 1, which is adding numbers, adding numbers with no renaming। no renaming means no change in name। okay, look at another इधर here। how can we add these two numbers? this is the unit place, this is the tens place, this is 100 place and this is the 1000 place। we have to add unit into unit। 4 plus 3
4 plus 3 it become 7. You have to draw lines 1 2 3 4. आप lines draw करके भी कर सकते हैं 1 2 and 3. Now count the total 1 2 3 4 5 6 and 7. You write here 7. Next one is tens. 2 plus 6, 6 plus 2, 6 plus 2 it's 8, 3 plus 4, 4 plus 3 it's 7 and 9 plus 1 it is 10. So there is no renaming, यानी यहाँ पे कोई आपके पास renaming यानी कोई कैरी आपके पास नहीं गया है. इस लेसन में हमने इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए थे. Now look at lesson number 2. That is adding numbers. With renaming, adding numbers with renaming. अब इस लेसन में आपने जिस तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, लुक एट हियर. You have to add unit into unit. This is the unit place. Tens into tens, 100 into 100 and 1000 into 1000 place. 5 plus 6, 5 plus 6 it become 11. हमने यूनिट को यूनिट में प्लस किया है, लेकिन हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो टेंस में आ रहा है, यानी 5 plus 6 it is become 11. अब 11 आपके पास टेंस नंबर है, हम क्या करेंगे, हम 1 यानी यूनिट जो प्लेस है वो आप यूनिट की जगह पर लिखेंगे, यानी राइट 1 हेयर एंड राइट द टेंस पोजीशन, यानी जो कैरी आपके पास 1 है या आप नेक्स्ट नंबर पर कैरी लगाएंगे लाइक दिस. Okay, so this is the addition of renaming. Now add 2 plus 1 it is 3 and 3 plus 8 it become also 11. We write here 1 and write the tens 1 on the 100 position as carry. Now add 7 plus 3, 7 plus 3 it's 10 and 10 plus 1 is also 11. We write here 1 and write 1 on the next number as carry. Now add 4 plus 1 it's 5, 5 plus 3 it's 8. This is 8111. ठीक है. This is the addition with renaming. All right. Now the next one is lesson number 3. Adding 3 numbers. एडिंग 3 नंबर्स, यानी यहाँ जिस तरह से हमने दो नंबर्स को ऐड किया था, अब आपके पास 3 नंबर्स भी हो सकते हैं. इस लेसन में हमारे पास 3 नंबर्स थे. लाइक 2342, 3473, 6394. This is the 3 numbers. These are the 3 numbers. All right. Now add these 3 numbers. 2 plus 3, 3 plus 2 it's become 5 and 5 plus 4, 5 plus 4 it is 9. We write here 9. 4 plus 7, 4 plus 7 it's 11 and 11 plus 9 it become 20. 20 का 0 हम यहाँ लिखेंगे और 2 जो है वो नेक्स्ट नंबर पे एज कैरी लिखा जाएगा. Now add these 3 numbers and also carry. 2 plus 3 it's 5, 5 plus 4 it's 9, 9 plus 3 it's 12. We write here 2 and write 1 on the next number. Now add these 4 numbers. 2 plus 1 it's 3, 3 plus 3 it's 6 and 6 plus 6 it become 12. So this is the adding numbers. Now come to the lesson number 4, that is subtracting 4-digit number. Subtracting 4-digit numbers but no renaming. यहाँ पर भी आपके पास subtraction तो है लेकिन no renaming, यानी चेंज नहीं है उसके भी. विदाउट कैरी विदाउट बोरो यहाँ पे वर्क हुआ है इस एक्सरसाइज में.
Look at this example. Subtraction means to take away. Subtraction का मतलब क्या होता है? निकालना. Now minus 4 में से अगर हम 2 माइनस कर दीजिए, what will be the number? 4 minus 2. You draw 4 lines, 1, 2, 3 and 4. ठीक है, हमें 4 में से कितने माइनस करने हैं? 2. So we cut 2 lines. 2 lines आपने कट कर दी. How many remaining lines? 1 and 2. Remaining lines कितने आपके पास बच रही हैं? 2. So we write here 2. 4 में से अगर हम 2 को माइनस करते हैं, the number is 2. 2 minus 1, it is 1. 3 minus 1, it is 2. And 7 minus 4, 7 में से अगर हम 4 को माइनस कर दें, you sketch 7 lines, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. You have to cut 4 lines. 1, 2, 3 and 4. 4 lines आपने कट कर दी. How many remaining lines? 1, 2 and 3. So the number is 3. 3212. Okay students? This is the subtraction without renaming. यानी यहाँ आपको बोरो लेने की जरूरत नहीं पड़ी है. In lesson number 5, subtracting 4-digit number with renaming. Okay, subtracting 4-digit number with renaming. Look at here in example. Let's try. Look at here. 5 minus 8. This is a symbol of minus. Okay. 5 minus 8. 5 में से हमें 8 माइनस करने हैं, बट हम नहीं कर सकते because 5 is less than 8. 5 जो है वो छोटा है किससे? 8 से. Now what we have to do? हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? We take one borrow to the left of the number. यानी आप 4 में से एक 5 को दे दीजिए. बोरो का मतलब होता है उधार देना. ठीक है. अब 4 अपना एक 1 5 को दे देगा. तो अब यहाँ कितने बचे? How many the remaining numbers? There is 3. यहाँ पे आपके पास क्या बचता है? 3 रहेगा, बचेगा. Now you have to minus 15 minus 8. 15 में से 8 माइनस कर दीजिए. 15 minus 8 it become 7. There is 3. 3 is also smaller than 7. अब 3 में से भी 7 माइनस नहीं हो सकता. What will do? We take one borrow to the left of the number. यानी आप 2 में से 3 को एक कैरी बोरो दे दीजिए. यहाँ पे आपके पास क्या हो गया? 13 and it become 1. और ये आपके पास क्या रहेगा? 1 रहेगा यहाँ पर. 13 minus 7. 13 में से 7 माइनस कर दीजिए. It become, it is remaining the number is 6. Remaining number आपके पास क्या रह गया? 6. Look at here. 1 में से 6 भी माइनस नहीं हो सकते हैं. What will we do? हम क्या करेंगे? 5 में से एक 1 बोरो दे दीजिए आप. यहाँ पर यहाँ क्या रहेगा आपके पास? 4. 11 में से 6 माइनस कीजिए. 11 में माइनस करेंगे आप 6. The remaining number is 5. Now 4 minus 2. 4 में से 2 माइनस हो सकते हैं. 4 minus 2 it's 2. So this is the subtraction with renaming. Okay. Now come to the next unit. That is unit number 8. 2D and 3D shapes. Okay. So unit number 8. Unit number 8, 2D and 3D shapes. We have learned 4 lessons in this unit. Okay, हमने 4 लेसन डिस्कस किए थे इसके अंदर. फर्स्ट, व्हाट आर 2D and 3D shapes? Solid shapes
आर 2D एंड 3D शेप्स, ठीक है। जो सॉलिड शेप्स आपके पास होती हैं वो क्या होती है, 2D भी होती हैं और 3D भी होती है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2D? 2D मतलब 2 डायमेंशनल। द शेप दैट हैव 2 डायमेंशन आर कॉल्ड 2D शेप्स एंड द शेप्स that have 3 dimensions or called 3D shapes। ऐसी शेप्स जिनकी 2 डायमेंशन होती हैं यानी लेंथ हो या विड्थ हो तो वो आपके पास कौन सी शेप कहलाती है, 2 डायमेंशन। और जिनकी 3 डायमेंशन होती हैं यानी उनकी लेंथ भी हो, विड्थ भी हो और हाइट भी, वो आपके पास कौन सी शेप्स कहलाती हैं, 3D शेप्स। सो फर्स्ट लेसन इज नेमिंग 3D शेप्स। आपका जो लेसन नंबर 1 है वो क्या है, नेमिंग 3D शेप्स। यहाँ आपको कुछ शेप्स दी हुई थी, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दीज शेप, ठीक है। द फर्स्ट वन इज क्यूब, द सेकेंड वन इज क्यूबाइड, दिस इज द सिलेंडर, दिस इज ट्रायंगुलर प्रिज्म, स्फेयर, स्क्वायर बेस pyramid, and the second one is cone, and the last one is tetrahedron. These all are the 3-dimensional shape. All right, you have to memorize the name of these shape. Look at an example. क्वेश्चन नंबर 1 में तो आपने जस्ट नेमिंग ही करनी है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 नेम द ओड शेप आउट इन ईच साइड। आपके पास कुछ क्वेश्चन के सेट दिए हुए हैं कुछ शेप्स के, ठीक है। उनमें से आपने ओड शेप बतानी है कि विच शेप्स इज ओड। ओड का मतलब जो शेप्स आपके पास बनी हुई हैं उनमें से ऑड यानी डिफरेंट कौन सी है। सो लुक एट ऑल द शेप्स। दिस इज द स्क्वायर बेस pyramid, also the square base pyramid, this is also a square base pyramid, but this is the triangular prism। ये आपके पास क्या है, triangular prism है। so we put the circle on it, आप इस पर सर्किल करेंगे and write the name here। triangular prism। okay so you must memorize the name and also practice these shapes ताकि आप इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें कि विच शेप इज दिस। नाउ कम टू द लेसन नंबर 2, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ 3D शेप। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ 3D शेप यानी शेप्स, आपकी जो 3D शेप्स होती हैं वो किस चीज से बनी हुई होती हैं। The 3D shapes are made up of 3 most important thing। The first one is face, ठीक है। पहली जो चीज होती है वो क्या होती है, फेस। सेकेंड वन जो होता है वो आपके पास क्या होता है, एज, एंड द लास्ट वन इज वर्टेक्स। दीज आर द 3 थिंग्स दैट मेड अ 3D शेप, जिसकी वजह से 3D शेप्स आपके पास मेक होती है, फॉर्म होती है। व्हाट इज फेस? फेस इज अ फ्लैट सरफेस। फेस क्या होता है आपके पास, फ्लैट सरफेस होती है आपकी शेप की। लाइक यू कैन सी स्क्वायर बेस pyramid, ये आपके पास जो फ्लैट सरफेस है, दिस इज कॉल्ड द फेस, दिस इज कॉल्ड फेस। ये क्या कहलाएगा आपके पास, फेस कहलाएगा। स्क्वायर बेस pyramid में 5 फेसेस होते हैं, 4 ट्राइंगल फेसेस होते हैं और एक आपके पास कौन सा फेस होता है, स्क्वायर फेस होता है। द फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड द फेस, द फ्लैट सरफेस, ठीक है। फ्लैट सरफेस आपके पास क्या होती है, फेस होती है। व्हाट इज एन एज? एज क्या होता है आपके पास, an edge is where 2 faces can meet, यानी वो जगह जहां पर 2 फेसेस आपके पास मीट करती हैं। यानी लुक एट दिस लाइन, दिस इज एन एज, यानी यहाँ पर आपके पास इस लाइन से ये वाला फेस और ये फेस क्या हुआ है, मिला हुआ है। द लाइन where two faces are meet, वो लाइन जहां पर 2 फेस आपस में मीट करती हैं
वो आपके पास क्या कहलाता है? एज कहलाता है। Where two faces meet together. ये भी आपके पास एज है, ये भी एज है, दिस इज ऑल्सो द एज, ठीक है। ये सब आपके पास क्या है? एजेस हैं। नाउ व्हाट इज द वर्टेक्स? वर्टेक्स इज अ कॉर्नर। कॉर्नर वर्टेक्स क्या होते हैं? कॉर्नर होते हैं। लाइक दिस इज द कॉर्नर, दिस इज ऑल्सो द कॉर्नर, सो दिस इज द वर्टेक्स। वर्टेक्स, दिस इज ऑल्सो वर्टेक्स, दिस इज ऑल्सो वर्टेक्स एंड दिस इज also the vertex. Square base pyramid has 4 vertex. अब vertex एक होगा तो vertex, ज्यादा है तो vertices, ठीक है। 5 है तो क्या आप क्या कहोगे ना? vertices. Vertex is a corner. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे जो शेप्स हैं क्यूबाइड, टेट्राहाइड्रन, ट्रायंगुलर प्रिज्म, क्यूब, स्क्वायर बेस पिरामिड, इनके आपको नंबर ऑफ फेसेस बताने हैं, एजेस बताने हैं और नंबर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है। कि क्यूबाइड के कितने फेसेस होते हैं, कितने एजेस और कितने वर्टिसेस। आप शेप को देखकर उनके फेस, एज और वर्टेक्स क्या कर सकते हो? काउंट कर सकते हैं। लाइक हाउ मैनी फेसेस ऑफ स्क्वायर बेस पिरामिड? स्क्वायर बेस पिरामिड के कितने फेसेस होते हैं? फेसेस इसके होते हैं 5। एजेस कितने होते हैं इनके? काउंट द एजेस। 1 2 3 4 5 6 7 और इसके पीछे भी एक होगा, सो दिस इज द 8 एज। एजेस यहाँ पर कितने हैं? 8 हैं। एंड हाउ मेनी वर्टिसेस? वर्टिसेस आर 1 2 3 4 एंड 5। इसके कितने वर्टिसेस हैं? 8। ओके, यू हैव टू प्रैक्टिस नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस ऑफ ईच शेप। हर शेप के आपने फेसेस, एजेस और वर्टिसेस की प्रैक्टिस करनी है। नाउ कम टू द लेसन नंबर 3, दैट इज पॉलीगॉन। Yes, what are polygons? Polygon is a 2D shape, ठीक है। पॉलीगॉन आपके पास 2D shapes होती है with straight side. A polygon is any 2D shape with straight side. You have see on page number 76. आप पेज नंबर 76 पर देख सकते हैं। There are so many polygons. A polygon that has 3 sides. ऐसा पॉलीगॉन जिसके 3 sides होते हैं वो आपके पास क्या कहलाता है? ट्राइंगल कहलाता है। एंड अ पॉलीगॉन that has 4 sided, जिसके 4 sides हो वो आपके पास क्या कहलाता है? क्वाड्रिलेटरल। अ पॉलीगॉन that has 5 साइड, ऐसा पॉलीगॉन जिसके 5 साइड्स हो आपके पास वो कौन सा पॉलीगॉन कहलाता है? पेंटागन, ठीक है। हर पॉलीगॉन का स्पेसिफिक नेम है। 6 साइडेड शेप इज कॉल्ड हेक्सागन, 7 साइडेड शेप इज कॉल्ड हेप्टागन, 8 साइडेड शेप इज कॉल्ड octagon, 9 side shape is called nonagon and the 10 sided shape is called decagon. You have to memorize these shape names and look at question number 1, that is name each of these shape, write whether they are regular or irregular shape. What is the means of regular or irregular shape? Regular shape आपके पास वो होती है जिसके सारे ही sides क्या हो? सेम लेंथ के हो। The shape that has all the सेम लेंथ ऑफ साइड, ठीक है, यानी उनकी सारी साइड्स क्या हो? सेम लेंथ की हो, तो आपके पास वो रेगुलर शेप कहलाती है। और इरेगुलर कौन सी होती है? वो शेप जिसके सारे साइड सेम लेंथ के नहीं हो यानी डिफरेंट लेंथ के हो, तो वो आपके पास कौन सी कहलाएगी? इरेगुलर शेप कहलाती है। ओके, आई होप यू हैव गॉट इट। नाउ कम टू द लेसन नंबर 4, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। यू हैव टू मेमोराइज द शेप्स नेम, ठीक है। आप जरूर शेप के नेम मेमोराइज करिएगा, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। क्वाड्रिलेटरल्स, व्हाट आर क्वाड्रिलेटरल्स? क्वाड्रिलेटरल इज अ 4 साइडेड शेप। वी हैव सो मेनी क्वाड्रिलेटरल। द फर्स्ट वन इज स्क्वायर, you can see here on page number 80. The first one is square, rhombus, kite, rectangle, parallelogram and trapezium. What is a square? Square is a 4-sided shape that has 4 equal sides and 4 equal angle. Square आपके पास 4-sided shape होती है, ऐसी shape जिसके चारों sides क्या होते हैं? Equal होते हैं और 4 angle भी उसके क्या होते हैं? Equal. The next one is rectangle. What is a rectangle? Rectangle is also the 4-sided shape that has 2 pairs of equal sides.
यानी उसके पास अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, उनके इक्वल होते हैं, और इनमें 4 यानी 4 जो है वो राइट एंगल भी होते हैं. व्हाट इज द राइट एंगल? द एंगल विच मेजरमेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री. वो ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 के बराबर हो वो आपके पास राइट एंगल कहलाता है. द नेक्स्ट वन इज रोम्बस. रोम्बस भी आपके पास 4 साइडेड शेप है और 4 इक्वल साइड होते हैं इसके भी, बट देयर इज नो राइट एंगल, यानी इसमें राइट एंगल नहीं होते. इट इज लुक लाइक अ स्क्वायर. स्क्वायर की तरह तो दिखता है ये, लेकिन इसके एंगल्स जो है वो 90 के बराबर नहीं होते, बल्कि उससे ज्यादा और कम होते हैं. Look at this shape. This is the rhombus. Next one is parallelogram. Parallelogram is also the look like rectangle. It is also 4-sided shape. Opposite sides are equal, but there is no right angle. ये भी आपके पास rectangle की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर जो है right angle नहीं होते, बल्कि right angles से less or greater acute और obtuse angle बनते हैं like this. This is called parallelogram. Okay. The next one is kite. Kite is also the 4-sided shape, and the 2 adjacent sides are equal and also the right angle. 2 adjacent sides यानी जो मीटिंग पॉइंट होते हैं, यानी जो 2 साइड्स इनके जो मिले हुए हैं, ये आपके पास क्या होंगे? इक्वल साइड्स के होंगे. एडजेकेंट साइड यानी ये साइड्स, ये इनकी सेम लेंथ की है, और ये साइड और ये साइड. दिस इज अ काइट. द नेक्स्ट वन इज ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम इज अ 4-sided शेप एंड 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड. ट्रेपीजियम आपके पास ऐसी शेप है जिसके अंदर एक पेयर होता है किसका? पैरेलल साइड का. इकट है, हर साइड जो है डिफरेंट लेंथ की है, लेकिन 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड, इसमें एक पेयर होता है आपके पास पैरेलल लाइंस का. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड. नाउ कम टू द यूनिट नंबर 9, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ज्योमेट्री. प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ज्योमेट्री. We have discussed, we have learned 4 lessons in this unit. The lesson number 1 is symmetry. Okay, what is the means of symmetry? A line that divide your shape into 2 equal parts. ठीक है, वो ऐसी लाइन जो आपकी शेप को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री. लुक एट दिस शेप. ठीक है, ये शेप, इफ वी फोल्ड दिस शेप लाइक दिस, सो योर शेप इज डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. आपकी जो शेप है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई है. दैट फोल्डेड लाइन, ये जो फोल्ड लाइन आपको नजर आ रही है, दैट फोल्डेड लाइन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री. सम शेप्स हैव 1 लाइन ऑफ सिमेट्री एंड सम शेप्स हैव मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री एंड सम शेप्स हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री. कुछ शेप ऐसी होती है आपके पास जिनमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, और कुछ शेप ऐसी होती है जिनमें एक से ज्यादा भी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, और कुछ शेप ऐसी भी होती है जिनमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती. Look at in question number 1. Look at this shape. This is a semicircle. ठीक है. How many lines of symmetry in this shape? If we fold this shape from here, ठीक है, अगर हम इस शेप को यहाँ से डिवाइड करते हैं तो ये शेप आपकी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी. सो दिस कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री. ये आपके पास क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री है, और यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री आपके पास कितनी है? 1. You have to write the number 1. In question number 1, look at these shape, draw the lines of symmetry and write down the numbers of line of symmetry. आपके पास ये जो shapes हैं, इसमें आपने line of symmetry draw भी करनी है, और यहाँ पर number of line of symmetry लिखने भी हैं. Now come to the lesson number 2, that is reflection. What is reflection? If we see a mirror, ठीक है, जब हम मिरर देखते हैं तो हम मिरर में क्या देखते हैं? We see a reflection. हम अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं मिरर में. If we put mirror on the line of symmetry, अगर आप line of symmetry पर मिरर पुट करते हैं, यानी मिरर रखते हैं, look at this line of symmetry, अगर आप इस line of symmetry पर मिरर को रखेंगे तो मिरर में जो रिफ्लेक्शन बनेगा आपकी हाफ शेप का, ठीक है, यानी आपके पास शेप इस तरह से है लेसन नंबर 2 में. दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ सेमी सर्कल. अगर आप सेमी सर्कल की लाइन ऑफ सिमेट्री पर इस तरह से मिरर को पुट करेंगे तो आपको जो मिरर में रिफ्लेक्शन नजर आएगा आपकी हाफ शेप का, वो आपको ऐसा लगेगा कि वो आपकी कंप्लीट शेप बनी हुई है. ठीक है, इसमें आपने जस्ट रिफ्लेक्शन बनाने थे. नाउ कम टू द लेसन नंबर 3, दैट इज ट्राइंगल्स.
ठीक है. व्हाट इज ट्राइंगल? ट्राइंगल इज अ 3 साइड शेप, इट इज अ पॉलीगॉन. अभी हमने पॉलीगॉन पढ़े थे, तो 3 साइड शेप आपके पास क्या कहलाती है? ट्राइंगल्स कहलाती है. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल. द फर्स्ट वन इज इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, राइट एंगल, एंड द लास्ट वन इज स्केलन ट्राइंगल. What are equilateral triangle? The triangle that has 3 equal sides and 3 equal angle is called an equilateral triangle. ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड इक्वल हो आपके पास और तीनों ही एंगल्स क्या हो? इक्वल हो, वो आपके पास क्या कहलाता है? इक्विलैटरल ट्राइंगल कहलाता है. Look at this shape. This is an equilateral triangle. The next one is isosceles triangle. The triangle that has 2 equal sides and 2 equal angle is called an isosceles triangle. ऐसा ट्राइंगल जिसके 2 साइड्स इक्वल हो और 2 एंगल भी इक्वल हो, वो आपके पास कौन सा ट्राइंगल कहलाता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है. Look at this triangle. It has 2 equal sides and 2 equal angle. ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है. The next one is right angle triangle. A triangle that has 1 right angle. ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल किसका हो? 90 डिग्री का हो आपके पास, वो आपके पास कौन सा ट्राइंगल कहलाता है? राइट एंगल कहलाता है. और राइट एंगल कभी आपके पास आइसोसेलेस भी होते हैं. ज्यादातर आपके पास राइट एंगल क्या होंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल्स भी कहलाते हैं. राइट एंगल and also the isosceles triangle. And the last one is scalene. A triangle that has no equal sides and no equal angle is called an scalene triangle. ऐसा ट्राइंगल जिसके ना ही साइड्स इक्वल हो और ना ही आपके पास एंगल्स इक्वल हो, वो आपके पास कौन सा ट्राइंगल कहलाता है? स्केलेन ट्राइंगल कहलाता है. ऑल राइट. द लास्ट वन इज शेप पैटर्न. ऐसा नंबर 4 के पास क्या है? शेप पैटर्न. यहाँ हमने शेप पैटर्न ड्रॉ करे थे. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ शेप पैटर्न. द फर्स्ट वन इज ट्रांसलेशन, सेकंड वन इज रिफ्लेक्शन, एंड द थर्ड वन इज रोटेशन. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द रिवीजन ऑफ योर content. I hope you have got it. Okay students, look at here. This is the content of your first semester final content. We have studied unit number 3, multiples and factor, and 5 lesson, addition and subtraction. You have to complete unit number 3 and 5 in your copy. And the next one is unit number 8 and unit number 9. We have learned 4 lessons in this unit. You have to complete this work in your book and also memorize tables 6 to 10. Now look at your diary. Do complete all work and also do practice. Okay students, I hope you have got it. If you have any doubt, any confusion, watch this video again. Inshallah we will meet in our school. Till then, take care. Allah Hafiz.